میرا اور پتلو کا کیا حساب کتاب ہے یہ آپ سب کو بہتر پتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا کس لیول کا یہ رہنا ہے، کس طرح کی ہماری دوستی ہے، آپ سب کو پتا، ٹھیک ہے؟ گالی گلوچ بھی ہے ہماری آپس میں، جو 10 سال پرانی دوستیوں والا ایک ہوتا نا بانڈ، اس طرح کا بانڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہوا کیا ہے، مجھے کل سے نا میرے ایڈیٹرز، میرے کزن بھی، دوست یار بھی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں، پتلو کے کو 3-4 ایڈیٹرز ہیں، ان کی نا وہ میری ٹنڈیں کر رہے ہیں، نیچے غلط کیپشنز میرے بارے میں لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مجھے وہ بھیج رہے ہیں، اب میرے ایڈیٹرز مجھے بھیج رہے ہیں، اور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ وہ مجھے کیا بھیج رہے ہیں۔ مجھے انہوں نے جو کام پتلو کے ایڈیٹرز نے کیا نا، سیم وہی کام کر کے مجھے انہوں نے ویڈیوز بھیجی۔ میں نے آگے سے ان کو کیا کہا، یہ انہوں نے نا ویڈیو بنائی، سیم وہی والی ویڈیو جو پتلو کے ایڈیٹرز بناتے ہیں۔ میں نے آگے سے میسج کیا، نہ اپلوڈ کرنا یار، پلیز ڈونٹ، میرا یار ہے، ٹھیک ہے؟ میرا نہیں دل مانتا، پلیز سب کو منع کرو، کوئی جواب نہ دے، ٹھیک ہے؟ نہیں، میں بھی ہر چیز کو سمجھتا ہوں، کون سی کوڈو آرمی ہے، کون سی کوڈو آرمی نہیں ہے۔ کوڈو آرمی جو ہے نا وہ الگ ہے، یہ جو 2-3 ایڈیٹرز ہیں نا، ایک وہ پوڈری ہے نشیسا، پھر ایک اور ہے کالا ہے لٹن پٹن، کالا تو خیر کالے سے میری بات بھی ہوتی، کالے نہیں شاید میرا خیال ہے، نہیں راہی روحی، کوئی بھی 2-4 ایڈیٹرز ہیں جو بھی ہیں، مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے نا ویڈیو ڈالی، میری ٹنڈے شنڈے کی، غلط کیپشن لکھی، ٹھیک ہے؟ میں نے پتلو کو آج سے کوئی مہینہ پہلے بھی کہا تھا کہ تیرے یہ 2-3 ایڈیٹرز ہیں، یہ اس طرح کام کرتے ہیں۔ پھر میری والی سائڈ کے لوگ بھی اگریسو ہوتے ہیں، وہ مجھے میسج کرتے ہیں کہ ہم کرنے لگے ہیں۔ میں ہمیشہ ان کو گروپ میں میسج کرتا ہوں کہ یار تاری مہربانی، گنے چنے 4-5 دوست نے، کچھ حیدر ڈوگر وغیرہ، ایک پتلو، سوشل میڈیا پہ دوست میرا کون ہے اور سوائے پتلو کے؟ حیدر وغیرہ جتنے بھی ہیں یہ تو سارے 12 سال پرانے دوست ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کائنڈلی آپ لوگ نہ کرو، تو ہمیشہ رک جاتے ہیں۔ میری جتنے بھی پتلو کے ایڈیٹرز ہیں نا، میرے خیال آج اس نے آپ کو بات کی ہوگی، آئی تھنک سو اس نے کی ہوگی، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ نہ اس کے پاس کوئی لائن لگی ہوئی ہے مخلص دوستوں کی، اور نہ میرے پاس کوئی لائن لگی ہوئی ہے مخلص دوستوں کی۔ اور ایک چیز اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ مجھے پتلو سے ٹک ٹاک والا فیم چاہیے، تو یہ آپ اپنی وہم و گمان سے چیز نکال دیں۔ الحمدللہ 11-12 ملین میری ریچ ہے۔ میں جس دن ڈے 1 آیا تھا، میں اس دن بھی 5,000-7,000 بندہ لے کے بیٹھا تھا۔ اور تیسری بات ایک اور بتا دوں، جس ٹائم میں پتلو کے ساتھ بیٹھتا ہوں اس ٹائم مجھے پلے نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی ریچ زیادہ ہے، اس کے گفٹرز کی کوانٹٹی زیادہ ہے۔ جیسے یوٹیوب پہ میرا نظام ہے ویسے ٹک ٹاک پہ اس کا نظام ہے، ٹھیک ہے؟ میں اکیلا بیٹھوں مجھے زیادہ پلے ہوتا ہے بجائے اس کے کہ میں پتلو کے ساتھ بیٹھوں۔ پتلو کے ساتھ جب بیٹھتا ہوں میں شغل کے لیے بیٹھتا ہوں، میچ کی نیت سے نہیں بیٹھتا، کیونکہ پتلو کے ساتھ مجھے نہیں پڑتا، پتلو کے اگینسٹ میں بیٹھتا نہیں، ٹھیک ہے؟ اور پتلو کے ساتھ بیٹھ کے مجھے پڑتا نہیں کریں۔ آئی نو کہ آپ کو تھوڑا سا لیک آف نالج ہے، پڑھی لکھی عوام نہیں ہیں آپ، بٹ اسٹل کوشش کریں کہ دوستی بنی رہنے دیں، کیونکہ بہت کم یاری دوستی ہوتی ہے جس کے اندر مفاد نہیں ہوتا، جس کے اندر لالچ نہیں ہوتی، کیونکہ نہ پتلو کو میرے سے لالچ ہے، نہ میرے پیسے کی، نہ میرے فیم کی، اور نہ الحمدللہ مجھے اس کے فیم کی، نہ اس کے پیسے کی۔ اس کا فیم اس کے ساتھ ہے اور میرا فیم میرے ساتھ ہے، اور ہم ہیپی ہیں، ٹھیک ہے؟ جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ نہ ہی وہ میرے باپ کی عمر کا ہے اور نہ میں اس کی باپ کی عمر کا ہوں۔ وہ مجھے گالی گلوچ کر لیتا ہے، میں اس کو گالی گلوچ کر لیتا ہوں۔ تو آج کے بعد مجھ سے یہ بات نہیں کرنی کہ تمیز سے بات کر، سمجھ لگی ہے؟ وہ آپ کے پاپا ہوں گے، میرے پاپا نہیں ہیں۔ پتلو آپ کا پاپا ہوگا، میرا پاپا نہیں ہے، میرا دوست ہے، میں اس کو ایز اے دوست ہی ٹریٹ کروں گا۔ اپنی یہ آپ کان میں بات بٹھا کے رکھیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل میری جان، فضول بات اگلی دفعہ کرنی نہیں ہے ورنہ کام خراب ہوگا، ٹھیک ہے؟ میرا دوست ہے، میں اس کو کھونا نہیں چاہتا۔ آپ کوشش کریں کہ اپنی جو ہے نا وہ زبان اور اپنے ہاتھ کنٹرول میں رکھیں، ورنہ یہ ہاتھ جو ہے نا، میرا خیال ہے میرے پاس آپ سے زیادہ ہاتھ ہیں یہ، لیکن میں ایوری سنگل وائس میسج سنا سکتا ہوں جو میں نے اپنے گروپوں میں کیا، کہ کوئی پتلو کے خلاف ایک ویڈیو نہیں بنائے گا وہاں سے جتنی مرضی بنتی ہے، کیونکہ مجھے اس کے ساتھ اپنا ریلیشن خراب نہیں کرنا، سمجھ لگی؟ بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم میری جان۔ یہ جو سسٹم ہے نا، یہ ایسے سسٹم نہیں ہو سکتا۔ اب یہ تو کوئی بندہ ریکارڈنگ لگا کے بھی چلا سکتا ہے آئی ڈی، بھی ایک بندہ سامنے نہیں آ رہا، اس نے ہو سکتا ہے میری ریکارڈنگ لگائی ہو، تو یہ کنفرم کام کیا جاتا ہے، ورنہ ہمیں تو پوری ٹک ٹاک میں بین کر دے بے۔ بتائیں نا، آپ کے نام کی ویریفائی آئی ڈی کوئی کیسے بین کرا سکتا ہے؟ ایک بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ کوئی کنفرم گیم کوئی ڈالتا ہے تو سسٹم ہوتا ہے، ایسے تھوڑی ایسے نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔
तो उसने किसी को ना किसी की एजेंसी से कोई मसला हो सकता है, पक्की बात है। अब ये आईडी एजेंसी में नहीं है तो फिर ये बैन होनी चाहिए थी सबसे पहले। मैं किसी की उसकी एजेंसी में जाता हूँ, पता नहीं फलानी एजेंसी वाला कुछ रिपोर्ट मारता हो, फलानी एजेंसी वाला मारता हो फलानी, ये तो कोई पता नहीं। इनके अपने चक्कर में अगले बंदे का नुकसान होता है, ठीक है। किसी से छीनने से बेहतर है, किसी से जंग करने से बेहतर है अल्लाह से मांगे, अल्लाह अता करेगा आपको। तो जो अल्लाह ताला है वो तो आपको पता है सबके लिए अच्छा सोचता है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा हर के लिए। तो मैंने इस चीज़ की समझ नहीं आ रही भी ਤੁਹਾਡੇ के क्वेश्चन है ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਯਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈਡੀ ਬਚੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो एक तो तुसी सामने भी नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਬਸ ਖਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। व्हाट इज दिस? सोचो ना यार, चीज़ सोचने वाली है, ज़हन च पाने वाली गल है। शाह जी वेलकम। ज़हन च पाने वाली गल है कि नहीं, दसो ना मैनू। ई नहीं बैन हुई आईडी, चलो ई रह गई है, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾ ਕਰੂ ਦਿਓ ਤੇ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ सज्जन कर रहा है, कोई दुश्मन कर रहा है, ठीक है। टिकटॉक का रूल है, टिकटॉक को भी बैन करने के लिए 2 हफ्ते चाहिए भाई, समझ आ गई। एडी हाई सर्विस जी है ना, ये ना दो, अच्छी गल नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं होती यार। जो भी कर रहा है, मुझे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना मुझे किसी का पता है और ना मुझे किसी ने कोई बताया भाई, मैं वैसे ही एक गल कर रहा, जो भी है भावें मेरा दुश्मन ही है कोई, मैं किसी से दब्बा दुब्बा नहीं ला रहा भैया ना, उसने किया होगा, उसने किया होगा, लीडर ने पता नहीं किसके खिलाफ की, मैंने किसी के खिलाफ बात नहीं की। वैसे आप लोगों को इस चीज़ की समझ और नॉलेज होनी चाहिए भी इस आईडी को बैन होना चाहिए था जिस पे मैं कैमरे पे बैठता हूँ। एजेंसी वाली आईडी ही क्यों बैन हुई? देखे ना, फिर एजेंसी वाली ही आईडी क्यों बैन हुई है? तो लिहाजा मेरे हिसाब से मुझे एजेंसी जो है ना ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। मैंने तो ये डिसीजन किया है। तो अगर कोई है ऐसा बंदा कि मैं कोई गारंटी उठाता है तो उसके साथ हम चल लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसके अलावा जो है ना मुझे नहीं लगता। जे असी पानी च डुबना ही है तो फिर असी अपने सिर से डुब के मरांगे, फिर असी किसी के सहारे क्यों डुबीए? ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੋਬਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਮਰੀਏ? ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਤੇ यही चीज़ है कि मेरी जान, मेन क्वेश्चन और सवाल ही इस चीज़ का है। मैं कैमरे ते ही नहीं हाँ, आईडी किसी दी वैरीफाई किसी दी, पिक्चर भैन दी सी भी अननोन, पता ही नहीं है कौन है, नज़र ही नहीं आती एडी, वो आईडी बैन हो जाती है। जिसका मसला है, जिस भूंजे का मसला चल रहा है, बड़ा फलाना हो रहा, टिकना हो रहा, वो कैमरे तो बगैर बैठे है, वो पता ही नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ बैन करना चाहिए सी। देखो कोई ना कोई जो पता ना जो बंदा भी उन्होंने इस आईडी ते पहला मारनी चाहिए सी, ये आईडी पहला बैन करानी चाहिए सी, उस तो बाद एजेंसी वाली आईडी बैन करानी चाहिए सी। ठीक है, मैं आज गल्लां खुलियां कर रहा, समझ आ गई।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਇਸ ਆਈਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫੇਮ ਤੋਂ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮਸਲਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫੇਮਸ ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਚਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਦਰ ਰੱਬ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। लेकिन ये मत भूलो रब देख रहे हैं, छीनने वाले से उन्हें क्या देने वाला ज़्यादा ताकतवर है। मुझे इन चीज़ों से परवाह नहीं होती, लेकिन दुख ज़रूर होता है कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह के बंदे हैं। आज तक किसी से हसद तो किया नहीं हमने भी इसको कॉइन क्यों पड़ गया, मैं नहीं पढ़े। हसद करना होता किसी को तो गालियाँ दे के आगे आ जाते भाई, ठीक है, किसी की टीसी करके आ जाते, किसी को बुरा भला बोल के आ जाते, 10 साल मेहनत ना करते अपनी, फिर समझ गए। तो ये बंदा बातें इस तरह की तब ही करता है जब वो इस चीज़ से गुजरता है। ये कोई परपेट बातें नहीं होती, या कोई बंदा को लिख के नहीं आता। ये बंदा अपने दुख बयान करता है, अपनी ज़िंदगी जो वो गुजार रहा होता है ना, वो बयान कर रहा होता है। समझ आ गई है? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। ठीक है, वो कौन सा दोस्त है भाई जो बंदा किसी की मजबूरी के साथ खेले। दोस्त तो वो होता है जो मजबूरी में किसी का साथ दे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं मेरी, लिहाजा कि किसी के साथ किसी बंदे को इस तरह का नहीं करना। जो दुश्मन भी जितने भी हैं, मैं तो उसको भी यही कहूँगा, जो नस्ली दुश्मन है उनको ये करना चाहिए, उनको मुकाबला करना चाहिए, तो वो बेहतर रहता है मैदान में। अगर आपके पास दुश्मन नहीं है मुकाबला करने के लिए, तो आप फिर बुज़दिल हैं, आप फिर वो आपके अंदर इंसानियत या आपके अंदर गैरत का खून नहीं है, आप बुज़दिल हैं। अपने दुश्मन को बंद करवा दें तो खुद बोले हम बहुत बड़े पैंच हैं, वो पैंच नहीं होता, वो बुज़दिल होता है। आपका दुश्मन भी मैदान में होना चाहिए और ख़ुद भी मैदान में हो, तो तब पता चलता है कि मैदान का बादशाह कौन है, ठीक है। ਤੁਸੀਂ 35-40 ਰੇੜੀਆਂ ਪਾ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਪਰਾਂ ਮਾਰ ਦਈਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, समझ गए। क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं, आज भी बता दूं, कल बता दूं, मैंने पहले भी 36 दफ़ा बताई है, ठीक है। मैं पहले ज़ीरो था, अभी भी ज़ीरो हूँ, हमेशा अपने आप को मैं ज़ीरो और माइनस में ही देखता हूँ, ये मेरी बात याद रखें। मेरे पास ये 9,000 लोग हैं, 900 भी रह जाएंगे ना, तो जब तक मेरे अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में रिज़्क लिखा हुआ है, मुझे मिलता रहेगा। चाहे मैं किसी रूढ़ी पे जाके लाइव बैठ जाऊँ, चाहे मैं जिधर मर्जी बैठ जाऊँ, लेकिन आपको इस तरह हरकत नहीं करनी चाहिए, किसी के रिज़्क के साथ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको भी वही रब रिज़्क दे रहा है जो मुझे दे रहा है, बस। बैन शैन का एक ही सीन नहीं है। बैन ये सीन तो मैं पिछले 1.5 साल 2 साल से देख रहा हूँ। मुझे आईडी बैन होने का दुख नहीं होता, मुझे दुख ये होता है कि मुझे समझ नहीं आती कि आप लोगों को इतना हसद क्यों है, आप अपने रब से क्यों जंग करते हैं। ये अल्लाह की देन होती है, ये अल्लाह की वंड होती है, उदी तकसीम दे उत्ते तुहानू क्यों तकलीफ है, ठीक है। उदी तकसीम दे उत्ते तुहानू किस वजह से तकलीफ होंदी है,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ लड़न लग पइए भी आपको रब ने, अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत क्यों दे दी है, आप इस मकाम पे क्यों पहुंच गए हैं, आपके अंदर एबिलिटी है, आपने मेहनत की है, आपने पढ़ाई लिखाई की होगी अपने ज़माने में, आपने अपने माँ बाप की खिदमत की होगी, आपने कोई अच्छा काम किया होगा, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको इधर तक पहुँचाया है। तो माड़ा बंदा को आ जाए इत्थों तक तो फिर वो सारी लत्तां खिंचन लग पैंदे ने, एक एक बंदा रल के लत्तां खिंचन लग पैंदा। नहीं नहीं, इसको नहीं आगे आना चाहिए। ठीक है, ये जो चीज़ें लोग सुनते हैं देखते हैं, ये चीज़ें ऐसी होती नहीं है बेसिकली। अब तो इतना यकीन भी नहीं है कि खुद पे भी यकीन नहीं है, सीधी सी बात है। किसी को मेरी बात बुरी लगे या अच्छी लगे, दोस्त तो दोस्त रह गए, तो मुझे अपने आप पे खुद पे भी यकीन नहीं है अब कि मैं खुद के साथ ना धोखा कर दूंगा। जेन्युइन बात है, समझ गए? इतना कि बंदे का दिल टूट जाता है। ये स्क्रीन पे बैठना आसान है मेरी जान, इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े बंदों के स्क्रीन के ऊपर आगे पसीने छूट जाते हैं, समझ आ गई? लोग तो कहते हैं भाई है ना, फेमस हो गए हैं तो बस पैसे आ गए हैं, तो ये हो गया तो वो हो गया। हर चीज़ मैंने पहले ही बोला था, पैसा नहीं है, लेकिन पैसा लाइफ में ज़रूरी है। लेकिन जब पैसा आता है आपको बहुत सारी मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं, ठीक है, हर चीज़ करना पड़ती है। फेम को यूज़ करना आना चाहिए। फेम आ जाएगा, 1,00,000 दुश्मन बन जाएंगे आपके। उस चीज़ों फेस करना भी आपको आना चाहिए। ये नहीं पता चलता कि दोस्त केड़ा, यार केड़ा, ਤੁਹਾਡਾ सज्जन कौन है, दुश्मन कौन है। नाल दी कच्छ च बैठा दुश्मन भी ਤੁਹਾਡਾ सज्जन हो सकता है, नाल दी कच्छ च बैठा यार भी ਤੁਹਾਡਾ दुश्मन हो सकता है, ठीक है। दुश्मनां च भी ਤੁਹਾਡਾ कोई सज्जन बैठा हो सकता है दुश्मन है, लेकिन ਉਹਦਾ दिल दुश्मन नहीं होएगा ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ यार कोई नाल बैठा होएगा, हो सकता ਤੁਹਾਡਾ दुश्मन होवे। ये दुनिया फानी है, दुनिया की समझ जी है ना, जिन्ना चिर तुहाडे नाल होएगा नहीं उन्नी देर तुसीं नहीं समझोगे इन्हां चीज़ां नूं। लिहाजा फिलहाल जिहड़ा तुहाडा काम है ना, वो ये तुसीं अपना बस अल्लाह ते बिलीव करके काम करी जाओ। जो तुहाडा निज़ाम है, जो तुहाडा सिस्टम है, चलता रहेगा, बस केड़ा रोल है, समझ गए? तो ये दुनिया का निज़ाम है, चलता ही रहना चौधरी, ये नहीं बंद होना किसी के कहने ते, ना कोई कर सकता है, ठीक है। हमारे अंदर खामी होगी भाई, हम अपनी वजह से इधर तक आए होंगे, हमारे अंदर कोई गलती हमने की होगी लाइफ में। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, मान ली बातें आप लोगों की भी मान ली, तो फिर अगर हमारी आईडी बैन होती है तो हम कहें कि नहीं हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, ठीक है, बयान किया हमने कि ये इस तरह नहीं करना चाहिए। लेकिन इस मामले में भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के बगैर तो पता नहीं चलता। हमने शुक्र नहीं है इस बात पे, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मैंने आप लोगों को एक एडवाइस दी है कि इस तरह का काम किसी बंदे के साथ नहीं करना चाहिए अपने लालच में आके, ठीक है। चाहे कोई मेरा यार है, चाहे मेरा कोई सज्जन है, चाहे मेरा कोई दुश्मन है। अब आईडी बैन दी सीधी किसी की एजेंसी में नहीं है, तो ये बैन क्यों नहीं हो रही, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। ये तो चल भी उससे पुरानी रही है, ये सोचने वाली बात है ना भाई। बाकी चलता रहेगा सारा सिस्टम इंशाल्लाह ऐसा ऐसा। तो इनू कंटिन्यू करिए या ना करिए तुसीं मैनूं दसना है। इनू कंटिन्यू एजेंसी च नहीं है, डायरैक्ट ही आप टिकटॉक दे नाल करके वेखना है या की करना है, तुसीं मैनूं दसना है। जे नहीं करना तो भी दस दिओ, जे करना है तो फिर तो भी दस दिओ, आपां करके चेक कर लेंगे। ये तो पिछले 15 दिन तो चल रही है आईडी, जो एजेंसी जाना नाल ही बैन हो जावीदा। जिस टाइम एजेंसी वाली आईडी लवी दी है, आईडी बाद ही लवी दी है, भैन दी सिर्फ सॉरी टू से हर शे पहला शार्ट हो जाती है भी अज गई कल गई, पता नहीं कि एजेंसी ऐसा ज्वाइन कर ली भी जी साड़ी। हुण देखो मैंने एक गल दसो, इसमें एजेंसी वाले का भी कोई कसूर नहीं है। मैं आपको जेन्युइन बातें बता रहा हूँ। एजेंसी क्यों बंदे को ऐड करती है कि चल साडा होस्ट साडे कोल आएगा,
उन्हें भी फायदा, सानू भी फायदा है। मेरी एजेंसी का कोई कसूर नहीं है जिसमें मैं हूँ। रिपोर्ट तो दूसरी एजेंसी मारेगी ना, मेरी एजेंसी मैनू रिपोर्ट क्यों मारेगी? दसो ना। उन्होंने तो फायदा हो रहा है तो वो होस्ट में भी फायदा हो रहा है। सोचने वाली गल है ना। तो जे जिस कमरे 'ਚ ਅਸੀਂ बैठे हुए हैं उस कमरे वाले बंदे ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ है, नहीं भी तू सानू पनाह क्यों दी है ना बई, एक मिसाल है, तू सानू अपने कोल क्यों रखा है? गलत गल है, समझ गए? जिस एजेंसी में मैं हूँ उनका कोई कसूर नहीं है इसमें। रिपोर्ट तो दूसरी एजेंसी मारेगी भी उनके पास क्यों है, फलाने के पास क्यों है, टिंगने के पास क्यों है। इसमें नुकसान किसका होता है? होस्ट का। नुकसान किसका होता है भाई? मेरा ही नुकसान होना है। थोड़ी तो आपस जंग लग गई है। मैं किसी को डिक्लेयर नहीं कर रहा फलाने ने रिपोर्ट मारी होगी, फलाने ने, मुझे क्या पता किसने मारी होगी रिपोर्ट। ते भाईजान करो, करने हैं, देखो करते रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। बाकी यार मैनू दुख बड़ा हुंदा जी जानन जी गल है। मैं तुहानू की दसां सारियां गल्लां जवानों, समझ गए? अच्छा, मैं वो नाले एक गल होर भी करनी है। वो पाउडरी किते बट की टेंड कर दी है, काले किते उहदे ते वीडियो पा दी है, जट के साथ तमीज़ से बात करो। मैं मेरी गल सुनो, यार दोस्त ने जिहड़े हुंदे ने ना, यार दोस्त, वो असी भी इंज ही आपस च गलबात करी दी है। ये यार दोस्त ने भी लिमिट रख के गल करनी होंदी तो फिर वो यारी नहीं होंदी। जिन्हें जिन्हें भी लाई है प्राइवेट करो, अच्छी गल नहीं है। दोस्त यार मैं असी फोन तो हट के एक दूजे ने गाल बनने है ना, तो अच्छी गल नहीं है। को फिर दुख लगता है ना भी आपां नूं ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ इंज करे तो फिर वो ज्यादती हो जाएगी, अच्छी गल नहीं है। तो यारी दोस्ती जिहड़ी हुंदी है ना, वो अच्छी चीज़ होंदी है। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई बंदा ਨਾਲ ज्यादती जुती ना करो। वीडियो शूडियो जिन्हें लाई डिलीट करो। एक दो तो दोस्त ने अपने भैन दी सी, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ भी ਆਪਾਂ इंज करांगे तो गलत गल है। या तो तुसी कोई मैसेज किया हो, तुहाडी गल ना मन्ने, तो फिर तुसी मैनूं दसना यार सामने ऐसे कहा था, उसने बात नहीं मानी थी। हिंद